are you also searching for any type of the motivational video? You want to motivate yourself before studying because you don't want to study. This you're like a burden. I am studying and I want some techniques which the toppers follow, and I want to become a topper without such hard work. So is it really possible? Other people. So if you believe in this fact, then let me tell you, you are absolutely wrong. Yes, you're absolutely wrong. You're not correct in this side. Because there are some strategies, everyone has their own strategies, and I knew that, but yeah, there are some tips which you can follow, but these tips only work when you do hard work, when you do hard work your day and night to compete others. The toppers don't study just to compete others. Yes, they have a feeling that they have a feeling in their self that yeah, I want to be the best, but this doesn't mean that they want to compete others. They want their self best than others. They want their best. If they get 90%, they want more. They want 95 above a percentage. But we thought that yeah, they are doing some strategies, or how can they become topper with just studying only a month before. But yeah, this is not the correct. The actual you see, this is not correct. Sometimes जो हम देखते हैं वो होता नहीं है सच में. तो वो क्या है? फर्स्टली जो टॉपर्स है, मैंने सबसे पहले बताया, वो आपको कम्पीट नहीं करते. टॉपर्स अपने आप को कम्पीट करते हैं. जब खुद को कम्पीट करना सीख जाओगे, टॉपर बन जाओगे. सो व्हाट डू आई मीन बाय खुद को कम्पीट करना? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपनी एग्जाम्पल, लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो अभी मेरे 93% आए हैं 10th में. सो मुझसे ज़्यादा भी आए हैं, मुझसे ज़्यादा भी टॉपर्स हैं 99, 98. मैं उनसे अभी अपना कम्पीट नहीं कर सकती. अगर मैं उनसे कम्पीट करने लग गई, सबसे पहली चीज़ जो मेरे में होगी वो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगी. आई डोंट फील स्टडी बिकॉज आई थॉट द स्टडी इज अ बर्डन. आई कांट डू इट because they have got so many marks, and in the 10th they have achieved so many marks. Yeah, this is their big achievement and they had done a hard work a lot to achieve that success. But मुझे जो compete करना है कि मुझसे कि जितना लेवल अब मैं पहुंची हूँ अपना 93 पे, क्या मैं इससे ज़्यादा जाऊँगी अभी 12th में या फिर 11th में, या फिर मैं इससे पीछे रह जाऊँगी? सो मुझे अपने आप से compete करना है. दूसरों से मैं compete कभी मत सोचना कि आप दूसरों से compete कर सकते हो. You can't compete anyone, because always when you try to become the best, when you try to become the best and when you try to compete the others, there is always person who is more better than you, who is ready to compete you. So आप दूसरों को compete नहीं कर सकते. First, if you want to be the topper, if you want that you don't feel like study as a burden, so please stop competing yourself. वो मुझसे ज़्यादा better है, वो मुझसे ज़्यादा better है. No, खुद को देखो कि मैं खुद से बेटर हूँ या नहीं हूँ. एंड जो सेकंड थिंग है कि वो अपनी टू डू लिस्ट. सो व्हाट डू आई मीन बाय टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट मीन्स just not for preparing the list and you just preparing the list of all the stuff such as 20 tasks you have to read that day, and you are not able to do even the 8 tasks out of the 20. So in this condition you might feel disappointed and sad because you are unable to do that thing which you promised to yourselves. So this also act as a disappointment for you and failure for you. So उतने ही टास्क बनाओ जितने आप कर सकते हो. मैं अगर अपनी टू डू लिस्ट बनाऊं तो उसमें मैं कोई हाई फाई नहीं रखती. व्हाट डू आई मीन बाय टू डू लिस्ट? मैं अपनी एग्जांपल देके बताती हूँ. एक मेरी डायरी राइटिंग होगी. रोज का मैंने 2 पेजेस लिखने हैं अपनी डायरी राइटिंग के. इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक. कभी मैं अपने डेली रूटीन, और कभी कोई टॉपिक मिल गया, कोई डिबेट राइटिंग ऑन एनीथिंग, कोई भी लिखो. जस्ट 2 पेजेस मैंने राइट करने हैं एवरी डे. एंड जो मेरी अगली चीज़ आती है टू डू लिस्ट में, दैट्स माई यूट्यूब वीडियो बनानी, अपलोड करनी, एडिटिंग, वो सब यूट्यूब वीडियो में आता है. इट्स माई टू डू लिस्ट. नेक्स्ट चीज़ है वो मेरा स्कूल का होमवर्क. वह मुझे अभी क्या करना है, क्या मुझे प्रिपरेशन करनी है, एवरीथिंग इज माई टू डू लिस्ट. And the other thing, the additional thing is about my English learning, that I have to listen English for 15 minutes or in this and I want to read something. तो वो मैं अपनी टू डू लिस्ट में बनाती हूँ. वो सिर्फ एज एक फॉर्मेलिटी नहीं है मेरी. वो मैं बनाती हूँ कि मेरे पास जो अभी मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में 100 तरह की बातें होती हैं, हम भूल जाते हैं. तो वो चीज़ है कि मैं भूल ना जाऊँ. दैट्स वाई मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ. और ये दिस इज़ नॉट ट्रुथ कि मैं एवरी डे अपनी जो टू डू लिस्ट है उस पर हमेशा हर चीज़ पे टिक मार्क करती हूँ. नो, हर चीज़ पे तो नहीं. कभी कभार 1-2 चीज़ रह भी जाती है. मोस्टली एक रहती है क्योंकि कभी कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू इट.
कि मैं हर चीज़ को टिक कर पाऊँ, बट मोस्ट के मेरे जो मतलब अभी मैंने अभी टू डू लिस्ट बनानी स्टार्ट ही की है, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। सो अभी मैं अपने थोड़ी थोड़ी टास्क लेती हूँ कि जो मेरे रेगुलर रूटीन में मैं जो करती हूँ बस वही, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेती, बस टू डू लिस्ट में जो मैंने करना है खाली। सो उसमें भी मेरा कभी रह गया कि अभी मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अभी अपनी टू डू लिस्ट में पिछले 4 दिन से इंक्लूड कर रही हूँ कि हाँ मुझे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करना है, बट आई एम अनएबल टू डू दैट। बट आई डोंट फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज सच में मेरे पास अभी टाइम नहीं था, बट आई विल ट्राई इट समहाउ। एंड जो फर्स्ट थिंग होगी कंपीट विद योरसेल्फ, सेकंड थिंग होगी टू डू लिस्ट उतनी बनाओ जितनी कर सको, ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल ऑलवेज। दूसरी चीज़ ये हो गई। एंड तीसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर और इफ़ यू डोंट फील लाइक योर स्टडी एज अ बर्डन, I don't know how many of you know this technique, but stick to your own notes. Stick to your own notes means sticky notes. Sticky note doesn't mean just to paste the notes on just as a simple slips and just paste on the wall. No. What do I mean by the sticky notes? Just to remind yourself to make your notes by yourself. अपने खुद के नोट्स बनाओ जैसे हैं, उर्दू में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आती है उसमें आप अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स पढ़ो। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो पहले टॉपर के जैसा बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, टॉपर बनना और टॉपर के जैसा बनने में बहुत फर्क है। सुनने में बिल्कुल बस आम ही लग रहा है टॉपर बनना और टॉपर के जैसा बनना, बट दे आर पोल्स अपार्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार। टॉपर बनना, टॉपर तभी बनोगे जब टॉपर के जैसा बनोगे। टॉपर्स कभी भी किसी दूसरे के नोट्स चोरी नहीं करते, जो आप लोग करते हो, हम लोग करते हैं। दूसरे के नोट्स चोरी कर लिए एग्जाम से 1 दिन पहले और फिर यूट्यूब वीडियोस के नीचे आकर लिखते हैं legends are watching this 1 hour before the exam, legends are watching this 1 day before the exams। तो ये चीज़ क्या legend हो आप? Are you really a legend? I don't think so. I really don't think so that you are a legend. You're a fool who is just showing your foolness to the other people। के अंदर मिसकंसेप्शन है, दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट टॉपर्स कभी भी स्टडी का बर्डन नहीं लेते। अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा बर्डन टॉपर्स पे ही होता है स्टडी का, तो डिड यू बिलीव? बट दिस इज ट्रुथ। टॉपर्स पे यार वो शो नहीं करते, वो अलग बात है, वो शो नहीं करते, बट स्टडी का बर्डन हर किसी को होता है। और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि ये ना तो ये क्वेश्चन है जो टीचर ने कराया ना हमें आता है, बट ये टॉपर को भी नहीं आता था, बट समहाउ ही और शी इज अनेबल टू आंसर दैट। सो व्हाई? बिकॉज दिस इज देयर स्ट्रेटजी। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटेजिक वे में आपको अपनी एक स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया जो मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, तो मुझे बस उसके इगड़म तिगड़म उस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे जो कुछ भी पता है बस मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिखना है, जिससे टीचर अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 तो मुझे पक्का ही दे। वो चीज़ होती है उनकी स्ट्रेटेजी। If you want to become topper, you have to do that. You have to follow these type of the techniques. एंड जो अदर मिसकंसेप्शन है वो है कि टॉपर्स कभी भी मतलब एग्ज़ाम से 1 रात पहले नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम से बिल्कुल नज़दीक नहीं पढ़ते, वो एग्ज़ाम से आगे बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या फिर एग्ज़ाम नज़दीक आने पे पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? किसी ने लिखा है क्या नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने पढ़ा था, और मैं बताऊं मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन मैंने सुबह अपनी जो शिवदास की बुक थी उससे मैंने जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट मैंने टिक मार्क किए थे, जो मुझे नहीं आ रहे थे मैंने वो मार्क किए, और मैं वो सुबह मैंने 4 बजे उठ के वो सॉल्व किए। और उसके बाद भी मैं अपनी स्कूल बस में चढ़ने से पहले उन क्वेश्चंस को मैंने एक बार रिवाइज किया सब कुछ। और मैं बताऊं वो जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वो मैंने 12 क्वेश्चंस किए थे, और उनमें से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे 4 मार्क्स में। सो कैन यू बिलीव कितना अच्छा फर्क पड़ गया यार, सुबह पढ़ी और वही पेपर में आ गया। एक तो आपको इतना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मैंने अब भी पढ़ा था और अब भी आ गया पेपर में। एक तो मोटिवेशन और मार्क्स का कितना डिफरेंस। अगर सोचो मैं वो ना करती, वो मैं सुबह ना पढ़ती कि टॉपर्स तो यार नहीं पढ़ते, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अगर मैं अब स्ट्रेस में पढ़ूंगी तो मैं दूसरा भूल जाऊंगी, तो क्या मेरे इतने मार्क्स आ पाते? नहीं, सीधा यार 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आ गए, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि टॉपर्स 1 दिन से पहले नहीं पढ़ते, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। कुछ तो बैक बेंचर्स भी नहीं पढ़ते यार। सो वो चीज़ नहीं है, जब मन करे तब पढ़ो, कोई नहीं एग्ज़ाम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, चिल होके पढ़ो। डोंट फील लाइक स्टडी, ऐसा मत लोगों की स्टडी एज अ बर्डन। जस्ट इंजॉय दिस प्रोसेस, इंजॉय एवरी जर्नी, और ये मत फोकस करो कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं।
जो टॉपर्स का मोस्ट ऑफ द फोकस होता है, और ये मिसकंसेप्शन नहीं, ये ट्रुथ है, और ये वाला लास्ट है, ये मिसकंसेप्शन नहीं, ये ट्रुथ है। टॉपर्स मतलब कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट पावर। डियर सर की अगर आप फैन हो तो डियर सर बोलते हैं कि द कंसेप्ट इज पावर, द कंसेप्ट इज पावर। सो वही चीज़ टॉपर्स फॉलो करते हैं, अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, वही आपकी पावर है। कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कोई अगर धरती जहाँ पताल से भी कोई टीचर क्वेश्चन उखाड़ के ला देना, वो भी आप कर लोगे if you know the concept thoroughly. So thank you, this is all for this video. I hope you like this video. If you like this video or if you found this video helpful, so please press the like button. Bye bye, catch you later.